Good morning, students. Today we will discuss about reading comprehension. Reading means you'll have to read and comprehend. You have to understand. So आज हम लोग करेंगे reading comprehension के बारे में. Why is it necessary? इससे हमारी reading speed बढ़ती है, vocabulary enhance होगी हमारी, and word formation हम लोगों की बेटर हो जाती है, और साथ में ही वी गेट अ सेंस हाउ टू रिप्लाई करने की जो सेंस है वो हमें क्लियर हो जाती है. सो वी विल स्टार्ट विथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. आपके सिलेबस में आपको अनसीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दी गई है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यू कैन फाइंड एनीवेयर, किसी भी बुक में मिल जाएगा आपको. सबसे पहले इसके लिए जो बेसिक है वो है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देर आर 4 मॉड्यूल्स इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज. फर्स्ट इज लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग. रीडिंग 3rd नंबर पे आता है जब तक आपकी वोकैबुलरी एनहांस होती है और यू आर एबल टू स्पीक प्रॉपरली. You are receiving, you are speaking, and then you are reading, then you'll start writing. Reading is very important. You know why is it important? हम लोगों को अपने writing skill अगर grow करने हैं, we need to read. Reading is very very important, very clear. And for your if you start reading, then obviously your ability to read increases. Then understand, you remember what is being read, you understand what is being read, and you communicate very effectively. And you can use different words for one thing, like you can use synonyms को आप use कर सकते हो. You can change them into antonyms also, opposite भी उनका बना सकते हो. And if you want to read, you need motivation. English is a foreign language, you know well, and you need to be motivated if you want to read. Why do we want to read? We need reading to increase our vocabulary, to enhance our communication skills, and to be confident. इन चीज़ों के लिए reading ज़रूरी है. Now let us move towards reading comprehension. Comprehension means understanding. So what we have to do, the paragraph, we are given a paragraph, suppose we have to go through that very paragraph and understand the content of the paragraph. Now you might be thinking that only one reading would be sufficient. No, at least now at present, if you are doing it today, you have to go through 3-4 readings. So you'll take a reading, you'll take a second reading, you'll underline with HB pencil tough words. Suppose in exam there are tough words, no need to worry, just underline them. Try to understand the sense of the paragraph. उसको सेंस करो, वर्ड्स की टेंशन नहीं करनी. और उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेयर यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन यू मस्ट नो द डिफरेंस ऑफ WH वर्ड्स, कि व्हेन का मतलब क्या है, वाई का क्या है, हाउ क्या है, व्हाट क्या है, हु और हुज और हुम में क्या डिफरेंस है. यू मस्ट नो दीज थिंग्स. व्हेन दे आर क्लियर टू यू, योर reading comprehension becomes very very easy. So you'll have to find the things. Then comprehension regulation में क्या है, your setting goals based on purpose of reading, previewing the text, then self questioning, scanning, and relating new information to the old. Purpose of reading should be clear. Why are you reading? आपने स्क्रीन करना है, स्कैन करना है, अंडरस्टैंड करना है. एंड स्किल्स फॉर बीइंग इफेक्टिव रीडर. इफेक्टिव रीडर के लिए क्या चाहिए हमें, मेन आइडियाज़ और सपोर्टिंग एविडेंसेस, जो हमने कंक्लूजन्स ड्रॉ करे हैं. उसके बाद हमें टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है. ऑल ओवर जो अगर हम समरी की बात करें, अगर हम प्रिसाइज वे में बात करें, तो व्हाट डू वी नीड टू रीड इफ़ यू आर रीडिंग पैराग्राफ का जो कंटेंट है, जो जिस्ट है, जो सारांश है, दैट शुड बी क्लियर टू अस. उसमें आपको क्या करना है, आपके जो वर्ड्स तरह तरह से यूज़ हुए हैं, जो वोकैबुलरी एनहांसमेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको आपने करना है. सपोज अ वर्ड गो इज देयर, then you can form 3 forms of verb: go, went, gone. Then you'll have to come to going, ing used with continuous. Fine, 4 words are there. 5th word is goer. Same is the word with run, run, ran, run, running 4, and the runner is 5th. So you'll have to form words with the help of टेक्निक ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, जहाँ 3 तो वर्ब वाले आएंगे, चौथा आपका ING वाला आ जाता है, एंड 5th इज ऑफ योर it is your noun basically. So this way you have to prepare yourself for the content which is there in comprehension, which you have to understand. सब कुछ समझना है आपने इसमें जो है वो आप इन्होंने दिया है, इम्प्रूव योर रीडिंग बाय बीइंग अ मोर एक्टिव रीडर. किस तरह से सर्वे, लुक ओवर द चैप्टर एंड गेट एन आइडिया. इसमें क्या है,
क्वेश्चन WH टाइप क्वेश्चंस, देन यू विल हैव टू रीड, देन यू विल हैव टू रिव्यू. किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करके रिव्यू करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद रिसाइट करना है, लर्न करना है. सो आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसे स्ट्रेंथन होगी? आपने टाइम और प्लेस जहाँ आप रीड कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉइजी प्लेस पे बैठे हो और जो है वो नींद लगी हुई है, यू वोंट बी एबल टू डू योर रीडिंग. सो यू शुड बी वेरी फ्रेश व्हाइल यू आर डूइंग रीडिंग. देन रीफ्रेज ईच पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स. अपने वर्ड्स में अंडरस्टैंड करो पैराग्राफ्स को. रीड अलाउड सेंटेंसेस एंड सेक्शंस एंड दैट आर पर्टिकुलरली डिफिकल्ट. अगर कोई टफ वर्ड है, यू हैव टू रीड इट लाउडली. आपने प्रोनाउंसिएशन पे वर्कआउट करना है. देन रीड डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस. जो सेक्शन समझ नहीं आया वहाँ री रीडिंग रिक्वायर्ड है. री मीन्स अगेन. स्लो डाउन योर रीडिंग रेट. अपने रीडिंग रेट को थोड़ा सा स्लो डाउन करके टाइम देना है. टर्न फीलिंग्स इनटू क्वेश्चन. जो हेडिंग्स हैं उनको क्वेश्चंस में कन्वर्ट करो. ब्रीफ आउटलाइन बनाइए मेजर पॉइंट्स की, और उसके बाद जो आपके हाईलाइट करने हैं की आइडियाज, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, यूज HB पेंसिल फॉर द सेम. नोट्स जो मार्जिन्स पे लिखने हैं वो लिखो, और उसके बाद आपने जो है वो कॉम्प्रिहेंशन को इजी करना है. आप क्या करोगे? आप कंसल्ट अदर सेक्शंस ऑफ योर टेक्स्ट. अब आपने क्या करना है? डिक्शनरी की हेल्प लेनी है जो आप घर पे ले सकते हो. उसके बाद रेफरेंस मटेरियल यू मस्ट नीड. एंड रीडिंग रेट जो है आपका वो कैसे चलना चाहिए, जैसे पेज में लाइन के साथ साथ आपकी आंखें चलनी चाहिए, या आंखों के साथ साथ आपका फिंगर चलना चाहिए और लाइन की रीडिंग आनी चाहिए. 5 कैटेगरीज हैं रीडिंग रेट्स की. वन इज यू शुड बी वेरी केयरफुल, यू नो, पीपल हु अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. देन पीपल हु आर नॉर्मल, जो नॉर्मल नोट करते हैं, डिटेल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे आते हैं. रैपिड, यूज टू रिव्यू फैमिलियर मटीरियल, और वो क्या करते हैं साथ में मेन आइडिया को करते हैं. स्कैनिंग, द मेथड बाय विच यू रीड द न्यूज़पेपर. स्कैन करते हो. और स्किमिंग, डन अ लिटिल मोर क्विकली, थोड़ी सी जल्दी करते हैं जहाँ पे आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढ रहे हो. फिर आपको दिए गए हैं कि किस तरह से आपने जो है वो रीडिंग को करना है. आपको कुछ एक टिप्स दिए गए हैं, यू हैव टू फॉलो देम, और उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए. इट इज़ वेरी स्कोरिंग. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नाउ. सबसे पहले आपने फास्टर रीडिंग के लिए क्या करना है? ज़्यादा अपनी रीडिंग हैबिट को ग्रो करो. जितना पढ़ सकते हो स्टार्ट रीडिंग. even if a newspaper is there, even if a magazine is there, even if your book is there, learn to read for main ideas. Whatsoever you are reading, you must know the main idea of the same. आपने चैलेंज फॉर कॉम्प्रीहेंशन क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड what is given for comprehension. Budget your time, it is very important. I've seen students, they sit for round about 2 hours, they'll be in the examination hall. They won't do anything very important, but when it is round about more than 2.5 hours, when they cross, their speed increases. It means that budgeting of time is not there. So you have to plan your time for all papers. Then pace yourself, you need to speed up yourself. Develop habits of immediate concentration. आपकी concentration it should be very good. Read early in the day. Early reading करनी है when no nuisance is there, no noise is there. Read for short bursts. 30-40 minutes की reading करके you need a break. Then find a quiet location. Location should be quiet and peaceful. Monitor your comprehension. You need to monitor what is being learned by you. ट्राई स्किमिंग द चैप्टर फर्स्ट. चैप्टर को स्किम करने की, उसको अंडरस्टैंड करने की, उसके कंक्लूजन ड्रॉ करने की आपने पूरी कोशिश करनी है. देन इन अ जनरल सेंस व्हाट यू हैव टू डू, आपने किस पे वर्कआउट करना है? उसमें एग्जाम्पल्स होंगे, उसमें एंटनिम्स होंगे. एंटनिम्स होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स होंगे, तो आपको वर्ड फॉर्मेशन पे वर्कआउट करना पड़ेगा. मैं आपको बताऊंगी हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. कंट्रास्ट होंगे, ऑपोजिट चीज़ें होंगी. उसके बाद आपके जो है फैक्ट और ओपिनियन आता है, और फिर आप डिफाइन करते हो उस फैक्ट को, किसी ओपिनियन को आप लोग डिटर्मिन करते हो. नट शेल में व्हाट यू हैव टू डू, 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको इन्होंने ज़्यादा एक्सपैंड किया हुआ है. टैकलिंग अ कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन इन एग्जाम, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है उसके लिए, ये है बेसिक चीज़. न्यूज़पेपर रीड करो. योर सेल्फ एनवायरनमेंट ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रीड द फर्स्ट लाइन, चाहे पैराग्राफ है चाहे जो मर्जी है, उस फर्स्ट लाइन में आपको क्लियर हो जाता है टॉपिक किस बारे में है. गुड स्पीड ऑफ रीडिंग शुड बी देयर. प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 typical passages every day. Read an article in newspaper daily and pen down important information and enhance your vocabulary. क्लियर और लॉजिकल थॉट्स होने चाहिए आपके. और
उसके बाद you will be able to go through reading comprehension. Now exercise is given. So what you'll have to do, you'll do this exercise, your reading comprehension first आप करोगे, और उसके बाद क्या करोगे आप, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें जो ईयर्स हैं वो आपने मार्क करने हैं, जो टफ वर्ड्स हैं वो मार्क करने हैं. इट इज़ सॉल्व, ये सॉल्व करके दिया गया है. तो आप लोगों को हिंदी में मीनिंग नहीं लिखने. आई हैव टेकन बुक फ्रॉम सम स्टूडेंट, जिसने बच्चे ने हिंदी में मीनिंग लिखे हैं. आपने हिंदी में मीनिंग नहीं लिखने हैं, आपने उनको सिंपली जो है एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें आपने मीनिंग को फिट करना है. अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप कॉम्प्रीहेंशन यहीं से करोगे, जहाँ भी आपको कंटेंट मिलेगा आपने कॉम्प्रीहेंशन करना है. नो इट हैज़ अ कॉम्प्रीहेंशन. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कवर दिस सेक्शन. ये जो सेक्शन है इसको आपने बुक से या कॉपी से कवर करना है. क्वेश्चंस वाला खुला रखना है, अपनी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज करना है. फिर आंसर्स को फाइंड आउट करने के बाद आपने आंसर्स को मैच करना है. एंड मेक इट ए हैबिट ऑफ योर्स. डेली यू हैव टू go through at least 2 reading comprehensions. So good day.